Om Shanti. Good evening and a very warm welcome to Refreshing Sunday Evening Talk. For first time visitors, I would like to give a brief note about Brahmakumari's organization. Brahmakumaris, officially known as Prajapita Brahmakumaris Ishwarya Vishwavidyalaya, is a worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal, founded in 1936 by Prajapita Brahmakumaris. Brahmakumaris has spread to over 137 countries in 5 continents of the world. It is working as an international NGO associated with the United Nations Department of Public Relations. And this place is a retreat center named as Shanti Sarovar, an oasis of peace. It's the largest campus of the organization in South India. It is an academy for higher learning for values and inner skills. It conducts wide range of courses, retreats, seminars and workshops. And today our topic is on World Peace Day. We Brahmakumaris observance of Jan 18th is a World Peace Day who left his physical body, Prajapita Brahma Baba, who left his physical body and attained his complete state. And today's topic is a very interesting and inspirational story of the founder of Brahmakumaris, Prajapita Brahma Baba, by Sister Vasanta. I would like to welcome Sister Vasanta to the stage with a big round of applause. Sister Vasanta completed her MA, MPH, MPhil English Literature from Acharya Nagarjuna University prior to an MBA in Self-Management and Crisis Management from Annamala University. She is a Rajoka teacher, motivational speaker, facilitator and educationist. She is a recipient of Peace Builder Award, Ambassador of Peace Award. She visited many countries and several talks in TVs and social media platforms. ओम शांति। सभी साथ में बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। As we have heard, January month is very special month for Brahma Kumaris. As you have heard, January 18th is celebrated, rather we are observing as World Peace Day. So peace is very much needed for everyone, right? For everyone, yes? So Brahma Baba's Ascension Day is observed as World Peace Day because that is the day Prajapita Brahma attained his complete form, left this physical costume. It is said when anything, any sweet you are preparing, so Brahma Baba attained his complete form on the 18th January in 1969. So this is very great time. In every year January, we have second Sunday or third Sunday, we especially hear Brahma Baba's life story because it is very much important. A human being like us, right? Like us, how he has completed, means he has attained his complete form. I was telling, it is said, any sweetmeat when you prepare, when it is completely prepared, what it does? हलवा बनाते हैं तो कब बनेगा, जब बनेगा तो क्या होगा? एरोमा स्मेल आता है और फल कलर और फॉर्म चेंज होता है और what else? What is the that mark that हलवा बन गया अभी? हाँ, राइट। वो जो कढ़ाई जोड़ता है, घी बाहर आता है,
तो उससे मालूम पड़ता है कि ये बन गया, पक गया अभी, राइट राइट. So in the same manner, when someone attains, means the soul attains the complete form, means the soul becomes full of all the good qualities, virtues, specialities, powers, then automatically that soul doesn't need this form anymore. Got it? हाँ? जैसे कढ़ाई छोड़ता है, ऐसे आत्मा के लिए शरीर, द एक्सप्रेशन ऑफ द सोल doesn't need the form anymore. Right? So Brahma Baba, when he become complete, full with all virtues, all qualities, all the goodness, then he left this physical form. He attained the complete form. Right? So that is the day where, means the whole month, January month, in Brahma Kumaris, we call it as the Tapasya Mas. Means he has become complete and full. So like that, we also want to attain that state. Right? So for that, all our effort making is. So this month is celebrated as Silence Month. Huh? Because how much ever you come in the voice, in the sound, then what happens, you know? Your energy gets depleted. The more you are silent, the more you are empowered. You know this secret? The more you come out in the sound, right, you lose the essence of anything. जितना जितना हम साइलेंस में रहेंगे, उतना उतना आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाएगा. The soul becomes empowered. So this month specially is said as Silence Month. So in all the Brahma Kumaris branches across the world, the same system is maintained, and everyone more silence, more meditation to become like Father Brahma. And you might be knowing so many meditation places also when you came last week or before that also. So all these special places are made specially in January month to experience the flavor of Brahma Baba's life, how he has become complete human being only. Form is the physical body, but how he attained his complete form like an angel. So what is an angel? How do you describe as an angel? What do you say? कैसे रहता है एंजल? हाँ जी, गुड क्वालिटीज, गॉड्स मैसेंजर, और हाँ, full flying, will have wings and flying all the time. Yeah. हाँ जी, helpful. Right? So it is said angels are always flying. Right? Flying means who can fly? Those who is light, that thing can fly. Right? Otherwise the gravity will pull that thing. Right? So the one who is very light can fly. So Brahma Baba also become an angel, means he left this mortal coil and become very light, very powerful, very bright. So he attained the angelic form. Right? So we are talking about Brahma Baba and his life story, which is very inspirational, and it is something which tells us to know, to learn and to become. Not only just we hear every year, no, it is to become. जब तक नहीं बनेंगे तब तक सुनने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना?
हाँ, तब तक सुनना अच्छा ही है। तो आप फर्स्ट टाइम कितने लोग सुन रहे हैं ब्रह्मा बाबा की कहानी? सुना है, पहले भी सुना है? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मतलब इट इज़ सो फैसिनेटिंग स्टोरी. I really cherish whenever I read again and again extracts from the life history of Brahma Baba. And I really cherish when I speak about Brahma Baba's life history because it is very inspirational. So, Brahma Baba, who has the Laukik name as Dada Lekhraj, Lekhraj Kriplani. So, his life from Dada Lekhraj, how he has become Pitashri Prajapita Brahma. So as it is mentioned, he has born in 1876 in Sindh province, that is undivided India, Akhand Bharat, pre-independence time. So when the Sindh province was there, so he has taken the birth in Sindh province, and we are talking about the time where the world was totally different from what we are seeing today, because he has born in Sindhi community. The Sindhi community was known for all the time, not only now, that time also it is known for its lavishness, and their life is totally different pace. And the world's condition that time was totally different, because many countries in the world did not get their independence that time, and lot of clutches of the other countries' authority was there in many countries, and people were living in lot of distress. And especially talking about the Sindh province, where Sindhis are known for their business skills, right? बिजनेस क्लास है, वो कहाँ भी जाओ फ्लरिश हो जाते हैं वर्ल्ड में. और कहीं जगह मीन्स और कोई नेशनलिटी मिलते या नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे हैं. मैं जहाँ पर रहती थी वेस्ट इंडीज़ में, बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं, हॉलीडे आइलैंड्स. सिंधीज़ ज़रूर रहेंगे हर जगह पर. इतना छोटा कंट्री, और ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ से ये निकला है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन. दे आर वेरी मच नोन फॉर देयर बिजनेस स्किल्स. कहाँ पे जाओ, एंड दैट टाइम ऑल्सो दे हैड द सेम स्किल. एंड स्पेशली देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज इन द वैश्य क्लैन, इन स्पेशली सिंधी कम्युनिटी. भाई बंद कम्युनिटी इज़ वेरी वेल known for their business skills. And Amal community, it is said, they are very good at studies and getting their jobs. But Bahai Bandh community is very good at their business skills, and very much seafarers they are. Means they don't stay in one place, they go and expand the business skills in different areas, different countries. So ये लोग भी भाई बंद कम्युनिटी जो रहते थे उस समय सिंध कम्युनिटी में, सिंध प्रोविंस में, वो लोग भी बहुत बाहर जाके बहुत सारे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे. और आज के जैसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उस समय, राइट? तो कहीं गए मीन्स आप कब आएंगे मालूम नहीं था, है ना? हाँ, शिप में जाते थे और पूरा माल लेके जाते थे. फिर आने के टाइम पर कुछ माल लेके आते थे, वो उस देश का जो स्पेशल चीज़ें हैं वो भी लेके आते थे. तो यहाँ पर भी बिज़नेस, वहाँ पर भी बिज़नेस. तो कभी कभी ऐसे थे कि 2-3 साल के बाद भी आते थे, और सब मेल्स इसी में बिजनेस में. तो एक बार बाहर गए एंड यू डोंट नो व्हेन दे विल कम बैक, वेदर दे कम बैक. एंड देयर इज़ नो फोन फैसिलिटीज़ और नथिंग दैट टाइम. तो कुछ हुआ तो भी मालूम नहीं है. तो ऑल द टाइम द लेडीज़ हु आर लिविंग इन द हाउस, दे आर विद दैट काइंड ऑफ फियर, राइट? आए तो भी थोड़ा समय रहेंगे, 2-3 महीना, फिर चले जाएंगे. तो द सिचुएशन ऑफ लेडीज वॉज वेरी वर्स्ट इन दैट कम्युनिटी एज वेल एज इन जनरल इन द वर्ल्ड सिचुएशन. एंड हियर Brahma Baba, who has become a chariot
of Shiv Baba, God the Supreme, the Almighty, he kept the organization's name as Brahma Kumaris. Means those who are downgraded and used as toys in the society, he has upgraded their value, upholded their respect, their dignity. तो उस समय की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर ऐसी माहौल तब पूरे विश्व में, नॉट ओनली सिंध प्रोविंस. तो उस समय हम देखते हैं कि दादा लेकराज कृपलानी, he is from Kriplani family and very good bhagat. He used to do a lot of bhakti, especially bhakti of Mahavishnu, Chaturbhuj Mahavishnu. So since childhood, not very nice, means not rosy path he had. A lot of obstacles he had seen in the life. In his childhood itself, he lost his mother in very small age, and he is a son of school teacher. So that time the school teacher or school headmaster and their children means how they used to be. कैसे रहते थे? स्कूल मास्टर के बच्चे माना कैसे रहते थे? बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत अच्छे, बहुत संस्कारवान, बहुत अच्छे गुणों से रहते थे. स्कूल टीचर माना ही नोन फॉर दैट क्वालिटीज़, राइट. तो ब्रह्मा बाबा के पिताजी भी स्कूल मास्टर थे, हेड मास्टर थे, तो उनको भी बहुत अच्छे वैल्यूज़ सिखाए थे. इसमें एक वैल्यू स्पेशली टू रेस्पेक्ट द विमेन, which was not in that society that time. तो ऐसे बहुत अच्छे, बहुत भक्तिवान, बहुत गुणवान परिवार में दादा लेकराज ने जन्म लिया, जिनको बचपन से लोग कैसे बुलाते थे, लकी राज बाबू. तो बचपन में लकी राज, लकी बाबू बुलाते थे उनको. तो पिताजी भी थोड़े समय के बाद गुजर गए, तो अकेले थे. तो उनके काका से, उनके अंकल के साथ रहना शुरू किया. और अंकल वो भी बिजनेसमैन थे, एंड स्पेशली ही यूज्ड टू डू ऑल द बिजनेस ऑफ द वीट, ऑल द ग्रेन मर्चेंट. तो बिजनेस में कैसा रहता है? बहुत वैल्यूज़ रहता है. बहुत वैल्यूज़ रहता है, या कैसे कमाने के टाइम पर डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है. तो बिजनेस माना ही मेरे को चाहिए, तो उसमें बहुत कुछ गोलमाल करते हैं. अडल्ट्रेशन भी रहता, या बहुत सारी चीज़ें रहती है. तो एज यूजुअल ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट लिटिल बिट, बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट फिलोंथ्रपिस्ट. He used to do a lot of charity, his uncle. And this person, Lakhi Raj Babu, he picked out all the good qualities from everyone. By birth, his soul also was very much with values, and on his life, he picked up all the good values, good virtues from everyone. So he also became like that later, but his uncle was also like that. This is pre-independence era I am talking about, and lot of people who used to do so much of charities, so many different things that time also. So means Lakhi Raj Babu also learned that quality from him, and he himself was like that. So his uncle was a grain merchant, and he used to do little bit adulteration also. And as a child, he had seen some situations where he was doing something wrong or some adulteration, and he pointed out that you cannot take the money from the poor people like that. And this triggered his uncle, and he said, if you are there with me, you don't make my business flourish. So as you grown up now you go from me and you start your own life.
And then Lucky Babu started his own life, and with his own so much of hard work, with lot of effort, with lot of good values, and with that commitment, he started his own journey and he started his own business also. And on the way, with his commitment, with his qualities, he become a jeweler, from a grain merchant to a jeweler. How much one has to put in their life, right? To become like that, how much one has to put their qualities. तो आप ये चित्र में देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा का जो लकीराज बाबू का रूप कैसा था. And you know, that time the system of having something on your head, that was respect, right? टोपी, पगड़ी, कुछ भी पहनते थे, वो सिस्टम ही ऐसा था, है ना. तो आप देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा का यंग एज का भी पिक्चर्स, और उसके बाद कैसे उनका जीवन परिवर्तन होते गया. तो ब्रह्मा बाबा, लकीराज बाबू, he started his business and started moving on, and lot of good qualities, and he became a jeweler, and he was having lot of bhakti of Mahavishnu, and he used to keep everywhere Vishnu's picture. Mahavishnu, one is the standing pose with 4 arms, and another one is शेष शैया पर लेटा हुआ महाविष्णु. दोनों पिक्चर्स उनको बहुत प्यारे थे, और कहाँ भी देखो महाविष्णु का चित्र रहता था उनके पास, और हमेशा उनको भक्ति भाव से, बहुत प्यार से रोज़ पूजा भी करते थे, आराधना भी करते थे. और उनके लाइफ में और एक वेरी मच गुड क्वालिटी, उनके ज्वेलरी बिजनेस में कितना सोशलाइजिंग रहता है. हाँ, कितना सोशलाइजिंग रहता है. ज्वेलरी तो सब लोग जाके मीन्स डायमंड्स तो सब लोग जाके खरीदते नहीं हैं. कौन खरीदते हैं? हाँ, ओनली रिच. एंड दैट टाइम इट वाज द टाइम ऑफ रॉयल्टी. सो मैनी राजास यूज्ड टू बी देयर. छोटे 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 बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस रहते थे, और राजा भी रहते थे, और वो सब राजाओं के साथ लकीराज बाबू का बहुत अच्छा संपर्क था. उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, राजाओं के पास. बाबा की पर्सनालिटी ऐसे होता था कि वो जाते ही सब लोग वेलकम करते थे, राजा भी. और उस समय आपको मालूम है उनका ग्रेड कैसे पता पड़ता है? राजा का ग्रेड क्या है, रानी का ग्रेड क्या है, या मंत्री का ग्रेड क्या है? हाँ, एक बार मैं सुना है लकीराज बाबू का जो लड़का, ब्रह्मा बाबा का मतलब पूर्व स्वरूप का लड़का जो नारायण दादा रहते थे, वो भी शरीर छोड़ दिए कुछ साल पहले. उन्होंने बताया कि राजा के जो पैलंक्विन होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, पालकी, तो उठाने वाले पैलंक्विन बेयरर्स 16 मेंबर्स, एंड क्वीन का पैलंक्विन बेयरर्स 8 मेंबर्स, राइट. उसके बाद फिर ग्रेड्स के अनुसार रहता है. और ब्रह्मा बाबा के पैलंक्विन बेयरर्स वर ऑल्सो 8 मेंबर्स. मीन्स इससे हमको मालूम पड़ता है कितना उनको रेस्पेक्ट देते थे उस समय से ही. तो बहुत अच्छा परिवार, और परिवार के साथ भी बहुत अच्छा रेस्पेक्ट. तो 5 बच्चे थे उनके, 3 बेटियां और 2 बेटे. तो आप ये चित्र में भी देख रहे हैं. तो बहुत अच्छा परिवार, बहुत गुणवान, बहुत दानी परिवार, शांतमय एकदम. बाबा कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करना या हाथ चलाना कभी नहीं. मतलब परमात्मा उनमें प्रवेश होने के पहले से ही उनका जीवन ऐसा होता था. हाँ, आप अगर अच्छा ज्वेलरी कोई खरीदते हैं तो ऐसे ऐसे रख देते हैं आप. हाँ, कैसे रखते हैं? Jewelry box also will be very good, no? You choose which jewelry box I must put this jewelry, right? The box also will be very valuable. तो आप एक ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके लिए आप बॉक्स को इतना अच्छा रखते हैं. जो स्वयं सर्वशक्तिवान
विश्व आत्माओं के पिता परमात्मा वो किसी में प्रवेश करे, उसके लिए वो किसी और में ऐसे ही प्रवेश कर देगा। गॉट द पॉइंट? तो उन्होंने भी कितना सोचा, कितना गुणवान हुए, उनके पास ही तो प्रवेश करेंगे, वो ऐसे ही कोई शरीर में तो प्रवेश नहीं करेंगे। तो पहले से ही ब्रह्मा बाबा का मतलब लकीराज बाबू का लाइफ ऐसा था, इतना इंस्पायरिंग, इतना गुणवान, इतने अच्छे। और 18 अध्याय भगवत गीता श्लोक, हर श्लोक सहित हर रोज गीता पारायण, उसके बाद ही खाना पीना कुछ भी, मतलब शुरुआत, दिन का शुरुआत बहुत अच्छे, बहुत शांतमय, बहुत भक्ति भाव से शुरू करते थे। एंड मैं बता रही थी आपको कि ज्वेलर माना किसके साथ उनका बिजनेस होता है, रॉयल्टीज़ के साथ होता है। तो ऐसे रॉयल फैमिलीज में मिलते थे, फिर भी कभी अपने जो गुण है वो नहीं छोड़ा। तो बाबा हमेशा कहते थे कि आप तो मुझे जो देते हो वो पेपर के नोट देते हो, लेकिन मैं जो देता हूँ आपको डायमंड्स दे रहा हूँ। आपके पेपर नोट के लिए मैं मेरा जो कमिटमेंट है या जो मेरी जीवन की मान्यताएं है या जो धारणाएं है, ये क्यों मैं छोड़ूं? हिम्मत होना चाहिए ना। बिजनेस नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं मेरी जो धारणाएं है मैं नहीं छोड़ूंगी। कितना हिम्मत होना चाहिए वो बोलने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का लाइफ ऐसा था। तो बाबा ये सिंधी के शब्द है जो देख रहे हैं, ही होनवार वीरवान के बीच होत चिकने पात, मतलब बचपन से ही किसी भी चीज़ के गुण देखा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का भी लाइफ ऐसा था कि 3 पीस सूट पहनते थे उस समय। आप ये चित्र में देख रहे हैं, तो ज्वेलर है, तो उनका जो बिजनेस है तो रॉयल्टीज़ के साथ ही नहीं, लेकिन ब्रिटिशर्स का भी उस समय ज़माना चलता था। तो ब्रिटिशर्स, वाइस रॉयस, गवर्नर जनरल्स, यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया भी कलकत्ता में इनके दुकान में आके 1-2 बार ज्वेलरी खरीद करके गए थे। वाई? बिकॉज ऑफ हिज माइंड इज़ वेरी प्लेजेंट, वेरी काम, देन द माइंड बिकम्स वेरी क्रिएटिव। तो इनके जो ज्वेलरी डिज़ाइंस थे बहुत क्रिएटिव, और कोई उसको कॉपी ही नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें। तो बाबा का स्टाइल ही अलग था। बाबा किसको कहते हैं वर्ल्डली वे में? क्योंकि मैं बार बार वही शब्द यूज़ करूँगी, बाबा बाबा करके। బాబా మీనా ఎవరినంటారు తెలుగు వాళ్ళు బాబా అని? నో సాయిబాబా ఆర్ నో ఎనీ ఫిజికల్ బాబాస్ ఐ am referring to. Baba means the father figure. Baba means the elder brother. तो ब्रह्मा बाबा means पिताजी और the eldest brother. तो बाबा के क्रिएटिविटी इतना हाईएस्ट कि कोई भी चीज़ मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं उनका। और उनका स्टाइल ऐसा था कि उनके बच्चों को 3 लड़कियां थे, तो उनको सजा के लेके जाते थे कहाँ भी। देखते ही रानियां बोलते थे हमको यही ऐसा ही चाहिए डिज़ाइन। किसी को दिखाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। फिर घर आने के बाद बाबा बहुत अच्छे से बच्चों से वही पीस लेके फिर बेचते थे। तो बच्चों को कुछ अच्छा लगा तो फिर आप निकालेंगे तो वो छोड़ेंगे, देंगे क्या वो? बहुत रोएंगे। तो बाबा कैसे निकलवाते थे उनके साथ, मतलब रॉयल्टी देखो कैसा है किसी के भी लाइफ में। तो बाबा कहते थे बच्चे आपको बासी खाना पसंद आता है? किसी को पसंद आता? कल का जो खाना देवे तो फिर बच्चे बोल रहे हैं नहीं, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो बाबा कहते थे ये भी बासी है, आपको नया ज्वेलरी बना के देंगे। मतलब उनके पास इतना
मतलब उनके संपन्नता का एक्सपीरियंस देखो कैसा है कि हर रोज़ नया ज्वेलरी पहनाए बच्चों को, इतना संपन्न, राइट। तो बाबा वही पैक करके फिर बच्चों को नया बना के बेच देते हैं। और एक एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि बाबा का जो बेटी थी निर्मल शांता दादी, अभी नहीं है, कुछ साल पहले, 15 साल पहले शरीर छोड़ दिए। उन्होंने बहुत अच्छा एक अनुभव सुनाया, मैं डायरेक्ट सुनी हूँ दादी के पास, तो उससे मैं बता रही हूँ। तो एक बार बाबा उनको एक बकल होता है ना, यहाँ पर पहनते थे उस समय, आज भी कोई स्टाइल से पहनते हैं, तो बकल जो है खोलेंगे तो उसका साउंड आता था, म्यूजिकल बकल। क्रिएटिविटी देखो उस समय भी। तो म्यूजिकल बकल बनाए और वो क्वीन विक्टोरिया ने देखा उनके दुकान में ये, और उन्होंने बोला ये पीस चाहिए हमको। 30s की बात, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बिजनेस जो है 3 जगह पर चलता था, सिंध में भी था, बॉम्बे में और कैलकाटा में। कैलकाटा उस समय ब्रिटिशर्स का एम्पायर वहाँ पर चलता था, तो कैलकाटा में बहुत अच्छा बिजनेस चलता था उनका। तो क्वीन विक्टोरिया कैलकाटा में इनके दुकान में आई और उन्होंने ये खरीद के लेके गई। फिर उसके बाद तो फिर क्वीन का जो हो गया वो सब म्यूज़ियम में चला गया, वो सब हिस्ट्री में। तो फिर एक बार निर्मल शांता दादी गए थे वहाँ पर बकिंगहम पैलेस में देखने के लिए, लंदन में। तो उन्होंने देखते ही उनकी पूरी स्मृतियाँ आई कि उन्होंने बोला इसमें ये खोलते ही म्यूज़िक आएगा। तो फिर वहाँ के क्यूरेटर जो होता है म्यूज़ियम का, उन्होंने तो सोचा ये कोई स्पाई आए हैं, कैसे मालूम है आपको करके। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी के जो लौकिक पिताजी हैं उनके दुकान से ही खरीदे हैं और मैं ही पहनती थी ये, फिर उन्होंने खरीदा हमारे दुकान से। फिर दादी कहते हैं कि उनको क्वीन विक्टोरिया के पास लेके गए, फिर बाद में उनका मुलाकात भी हुई और बहुत प्यार से जैसे एक परिवार वालों से मिलते हैं ऐसे क्वीन विक्टोरिया ने दादी से मुलाकात किया। इसका मतलब उनका जो स्पेशलिटीज़ है, इतना क्रिएटिविटी उनके फील्ड में कि बच्चों के साथ भी बहुत प्यार से, और किसी को कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अपना जीवन एक बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत प्यारा जीवन ब्रह्मा बाबा का था। तो बाबा आदर्श लौकिक जीवन में भी थे और ऐसा शरीर को शिव परमात्मा ने, ऑलमाइटी गॉड ने चुना खुद आने के लिए इस धरा पर। आपको हर बार बोल रहे हैं, आपको मालूम ही है, कोर्स भी किया है कि परमात्मा जो है हमारे जैसे शरीरधारी नहीं है। ही डजंट हैव द फॉर्म लाइक अस, ही इज इनकॉर्पोरियल। So corporeal is the form and he is incorporeal. The soul is just a point of light. And the supreme soul also is point of light. For he to enter or for he to meet all of us children, क्योंकि बुलाते रहे ना बहुत समय से, परमात्मा आप आओ, हमारे दुख हरो, सुख देवो, हमको ले जाओ आपके साथ। हाँ, किया ना प्रेयर्स, किया या नहीं? हर एक जब मंदिर में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं तो यही तो प्रेयर करते हैं। तो ये प्रेयर सिर्फ सुनता ही नहीं है, भगवान ज़रूर आना भी होता है। तो वो वही समय है, परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो उनके लिए, जैसे बताया, ज्वेलरी अच्छा है तो उनका ज्वेल बॉक्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो परमात्मा इनके शरीर में आए तो उनका आदर्श जीवन भी ऐसा था, लौकिक जीवन भी इतना आदर्शमय कि बहुत सुंदर, बहुत वंडरफुल लाइफ था। तो उनका जीवन यहाँ पर अब देख रहे हैं, उनका फैमिली कैसा था, और वो बहुत दानी थे, बहुत अच्छे दानी। उनके जो लौकिक में जो पुत्रवधू ब्रिजेंद्र दादी उनके घर में जब आए तो कहते थे, वो भी नहीं है अभी, पहले बॉम्बे में रहते थे कुछ साल पहले तक, 30 साल हो गया वो भी शरीर छोड़ के। तो दादी कहते थे जब भी वो कोई भी
मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर जाके आरती लेते हैं तो क्या करते हैं, दक्षिणा डालते हैं। तो कभी वो लोग काउंट करके नहीं डालते थे, ऐसे मुट्ठी भर के लेना और डालना। मतलब दान भी जो है बहुत गुप्त दान, दिखावे का दान नहीं, मैंने इतना किया, यहाँ पर इतना किया नहीं, कितना दान किया, मुट्ठी में जितना आया उतना डालने का। और बाबा यही सिखाते थे, बेटा आप ऐसे डालो बस। और वो भी बहुत अच्छे परिवार के थे, तो ऐसा लाइफ था। तो बहुत दानी, बहुत गुणवान व्यक्ति। तो बाबा का फिलॉन्थ्रोपिस्ट भी थे, ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट, जो दानी भी थे, महादानी भी थे। और बाबा का लाइफ ऐसा चल रहा था। और जब वो 60 इयर्स में आ गए थे, 60 इयर्स माना उस ज़माने में क्या सोचते थे, अभी भी 60 माना व्हाट इज़ दैट एज, रिटायरमेंट एज। तो उस समय भी ऐसे ही सोचते थे, रिटायरमेंट एज। उनको भी मतलब उनका लाइफ ऐसा था कि किसी के पास जाए, किसी का शादी है तो क्या गिफ्ट देते थे मालूम है? हाँ, बाबा का गिफ्ट कैसा होता था? तो भगवद गीता देते थे और उसके साथ साथ तेलुगु में तो मंदासनम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, मतलब आपके जो देवी देवताओं को रखने का एक सुंदर वो मंदिर जैसा घर में रखते हैं ना, हाँ मंदिर रखते हैं ना घर में, वो चांदी का बना के देते थे। और बाबा हमेशा उनको कहते थे, वाइफ एंड हस्बैंड जो बनने वाले हैं, तो दोनों जो पहिए हैं बहुत अच्छा चलना, एक पहिया अच्छा एक पहिया ठीक नहीं है तो जीवन का जो व्हीकल है ठीक नहीं चलेगा। इसीलिए साथ साथ बहुत अच्छा चलो करके ऐसा वरदान देके यही गिफ्ट देके आते थे बाबा सभी को। मतलब उनका लाइफ जैसा दूसरों का भी बने वो था। तो बाबा इतना भक्ति करते थे, गुरु अपने घर में ही रखते थे, इतने गुरु कि वो 12 गुरु किए थे लाइफ में, 12 गुरुस, एंड गुरु उनके साथ ही रहते थे। और कभी भी कुछ होता है तो रोज़ तो सत्संग वो सब चलता है, लेकिन कभी कुछ होता है तो बाबा गुरु के पास जाते थे, उनसे डिस्कस भी करते थे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1930-31 ऐसा टाइम, जब लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट होना चाहिए, अभी सबसे मुक्त हो जाना चाहिए। तो बाबा भी ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन अंदर एक जुनून था कि अभी जो कमाया उससे भी ज़्यादा कमाओ। क्यों कमाना? हाँ, दान पुण्य करने के लिए कमाओ। उनकी वाइफ जो थे जसोदा माता, वो भी इतना गुणवान कि उनमें उनको हर चीज़ में इतना कंपैटिबिलिटी उन दोनों के बीच में। और जशोदा माता भी कहते थे, हम अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे या जंगल में नहीं चले जाएंगे, इधर ही रहेंगे, गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, लेकिन हम जितना कमाया उससे भी ज़्यादा कमा के सबको दान करना है। ऐसे उनकी नेचर थे दोनों का, राइट। आजकल बहुत ही कम होता है कंपैटिबिलिटी, हाँ, इन द फैमिली लाइफ, लेकिन वो इतना कंपैटिबल एक दो के साथ, एंड बच्चे भी इतना कंपैटिबल उनके साथ। तो बाबा को 1930 से ही कुछ विजन्स, साक्षात्कार होना शुरू हुआ। तो उनको फर्स्ट वो किसके भगत थे? विष्णु चतुर्भुज। तो एक बार वो ध्यान अवस्था में बैठे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तो उस समय उनको एक विजन, एक साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। आप ये चित्र में देख रहे हैं ना, तो उनका फर्स्ट विजन था विष्णु चतुर्भुज का। तो विष्णु चतुर्भुज का देखते ही उन्होंने देखा, बहुत खुश हुए। फिर उनको एक शब्द भी सुनाई दिया, मतलब विष्णु बोल रहे हैं, अहम चतुर्भुज विष्णु ततत्वम।
ततत्वम माना ततत्वम मीन्स हाँ, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ, तुम हो। ये शब्द सुनते ही उनको समझ में नहीं आया। विष्णु चतुर्भुज का तो साक्षात्कार हुआ, वो तो खुशी हुई, लेकिन ये क्या सुनाई देता है, ततत्वम का वरदान क्यों मिल रहा है मुझे, मैं कैसे वो बन सकता हूँ, उनका भगत हूँ मैं तो, हाउ आई कैन बिकम लाइक हिम, ही इज सेपरेट एंड आई एम सेपरेट. So he started thinking about it, and he went and asked his guru. He got this vision, and if he has done this for him, हाँ, तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा गुरु से कि आपने मुझे साक्षात्कार कराया क्या? तो गुरु ने बोला नहीं, हमने तो नहीं कराया आपको. मतलब वो समझ में आया कि ये गुरु की कृपा या मनुष्य आत्माओं का नहीं है, और कुछ हो रहा है. और कुछ दिनों के बाद वो अपने फ्रेंड के घर में गए थे बनारस में. ये विजन हुआ था उनको बॉम्बे में, उनका मकान था उधर भी. तो फर्स्ट विजन उधर था साक्षात्कार. सेकंड कुछ साल बाद, 1-2 साल के बाद उन्होंने वहाँ बनारस में गए, आनंद बाग करके वो एक घर है, हम भी देख के आए. वो घर उनका दोस्त का था. तो वहाँ पर भी वो बैठे थे एक शाम को बाहर. मतलब पुराने ज़माने के जो घरे अच्छे अच्छे होते थे, उनके ऊपर कोटड़ी जैसा होता था, छोटे छोटे ऊपर गुंबद जैसा, और उसके नीचे एक कमरा. तो ऐसा एक ध्यान मंदिर ब्रह्मा बाबा का, मतलब दादा का, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, और उसी गुंबज के नीचे उस कमरे में बैठे, और वो ध्यान अवस्था में बैठे थे एक शाम को. और उनको दूसरा विजन, दूसरा साक्षात्कार हुआ, जिसमें उन्होंने देखा कि ये पुरानी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया जो है, बहुत दुख दर्द से है, बहुत मतलब अत्याचार अनाचार सब बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है. ऐसी दुनिया जो है पूरा ख़त्म हो रहा है, विनाश हो रहा है. कैसे? एक तो नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहा है, पांचों तत्व बहुत हाईएस्ट वे में अपना रूप जलवा दिखा रहा है, और उसमें लोग पानी में बह रहे हैं, और भूकंप हो रहा है, कहीं ड्रॉट चल रहा है. तो ये सब देखा कि उससे भी दुनिया विनाश हो रही है. और एक तरफ मिसाइल्स, एटॉमिक एनर्जी. आई एम टॉकिंग अबाउट समटाइम 1934-35. फर्स्ट मिसाइल और फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज यूज्ड इन व्हेन? 1945. When was that? In the time of Second World War. And I am talking about well before that. There is no thought of even atomic energy, and here this one has seen atomic missile का बारिश चल रहा है. क्या समझ में आएगा? कोई बात मालूम ही नहीं है, वो दिख रहा है सामने, और पूरी दुनिया विनाश हो रही है. लोग हाहाकार कर रहे हैं, पूरा त्राही त्राही मच रहा है, पूरी दुनिया ऐसे विनाश हो रहा है. और वो देखते देखते बाबा के आंखों से अश्रुधारा कंटिन्यूअसली बह रहा है, और बाबा के मुंह से निकल रहे शब्द, हे प्रभु, मैं ये नहीं देख सकता हूँ, कोई अच्छा मोहन सुंदर रूप आपका दिखाओ. फिर उसके बाद यही दुनिया, जो कलयुग की दुनिया, जो विनाश होने के बाद बहुत सुंदर सतोगुणी सत्युगी दुनिया आ रही है. जैसे आप देखते हैं आकाश में सितारे, एक एक सितारा टिम टिम करके नीचे उतर रहा है, और धरती को टच करते ही एक सुंदर प्रिंस, एक सुंदर प्रिंसेस, ऐसी दुनिया, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत शीतल, ऐसी दुनिया वो देखने लगा. फिर उनको समझ में आया कि ये सत्युगी दुनिया है.
फिर उनको ये इंस्पिरेशन अंदर से मिल रहा है, ऐसी दुनिया का निर्माण आपको करना है, राइट? ऐसी दुनिया का निर्माण आपको करना है। वो सोचने लगे, फर्स्ट विजन से ही वो सोचना शुरू किए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जितना उनको संपत्ति, सुख, महल, माड़ी, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ है, सबसे उनका दिल हटने जा रहा है। और अंदर से एक वैराग्य वृत्ति शुरू हो गया। जो डायमंड्स देख रहे हैं उनको पत्थर जैसे दिख रहे हैं अभी। दे आर नो मोर डायमंड्स फॉर हिम, दे आर नो मोर वैल्यूबल फॉर हिम। तो इसके बाद सेकंड विजन के बाद आपको ऐसी दुनिया बनानी है, तो वो सोचने लगे ऐसी दुनिया मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे से क्या हो रहा है, कौन ये सब करा रहा है। और फिर से गुरु के पास गए, पूछे। उन्होंने बताया मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो ऐसा आपको कराया नहीं। तो सोच चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मैं अपने बिजनेस से थोड़ा हट के जो मेरे साथ हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सोचूं, क्या हो रहा है, कौन करा रहा है मेरे से ये सब, राइट? तो फिर जर्नलिंग करना शुरू किया उन्होंने। आई एम टॉकिंग अबाउट a very good diary which Dada Lekhraj used to write before the incarnation of God. तो वो अपना मन, बुद्धि, संस्कार जो है उनके साथ बहुत अच्छा वार्तालाप करते थे, जिसको हिंदी में कहते कचेरी। हाँ, मतलब मन मंत्री तो क्या सोच रहा है, कितने अच्छे शब्द हैं। तो क्या सोच रहे हैं, किसके लिए तुम सोच रहा है, तेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। और हे बुद्धि, तुम क्या कर रहे हो। कितना अंदर की चिंतन चले तब जाके मुंह से या अंदर सोच ऐसे चलता है कि अपने आप से ऐसी बातें करें। और तुम किस तरफ जा रहे हो, तेरा मतलब मंजिल क्या है, हे राही तुम कहाँ चल रहे हो। ये सब बाबा यूज्ड टू राइट जर्नल, बहुत अच्छा जर्नलिंग डायरी है बाबा का अभी भी। तो उनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ भक्ति ही किया, लेकिन अंदर ज्ञान का इतना चिंतन मनन कि अपना जीवन का परिवर्तन शुरू हो गया। पहले से भी अच्छे ही थे, लेकिन और भी कुछ जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है वो चेंज हो गया। इसके पहले दान पुण्य करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा आपको ऐसी दुनिया बनानी है, कैसे बना सकता हूँ मैं, व्हाट इज़ माई गोल नाउ। तो उनको कुछ नहीं दिख रहा है, ये सब डायमंड्स, पत्थर दिखने लगे हैं उनको। फिर 1935-36 के टाइम पर उनको थर्ड विजन हुआ, जब वो सिंध में ही बैठे थे, एक शाम को सत्संग कर रहे थे गुरु के सामने, और सडनली बाबा इतना गुरु को मान देते थे, तो वो बुलाया या वो सामने है तो इवन इधर उधर भी नहीं देखते थे, इतना मान, इतना रिस्पेक्ट। गुरु बुलाया मतलब काल बुलाया जैसा। आप कितना भी बड़े पार्टी में रहो या कुछ भी आपके घर में चल रहा है, एक बार ऐसे ही हुआ था, उनका ग्रैंडसन का नामकरण हो रहा था, नेमिंग सेरेमनी। उस समय उनके गुरु से फ़ोन आया, आप आओ। तो बाबा के पास सब कुछ, सब लोग खड़े हैं, लेकिन बाबा ने बोला गुरु बुलाया माना, आप रोक नहीं सकते, मतलब इतना मान कि वो चले गए उनके पास। वो छोटा पेटी थिंग के लिए वो बुलाए थे। फिर वो उन्होंने रियलाइज़ किया, फिर बाबा को वैराग्य आने लगा कि वो इसीलिए बुलाए थे क्योंकि उनका कोई शिष्य था, वो अपने मीन्स क्या वो खेलते हैं ना, मीन्स हाँ, खेल में कुछ लॉस कर दिया था, पैसा लॉस कर दिया था। वो पैसा भरने के लिए गुरुजी ने इनको बुलाया। तो आप किसी को खेलने का, ये सब ताश खेलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ,
जुआ खेलते हैं ये सब, तो यही नहीं छुड़ा सकते तो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है कैसे छुड़ा सकते आप? एक आदत ही नहीं छुड़ा सकते तो आप कैसे ये सब छुड़ा सकते हो? फिर उनको गुरु से भी थोड़ा सा वैराग्य आने लगा कि कोई भी मनुष्य मात्र किसी के अंदर के जो खामी कमजोरी है, खामियां है, वो नहीं निकाल सकते। तो कौन निकाल सकता है? तो उसका चिंतन ही अलग प्रकार के चलने लगा। तो वो 12th गुरु था, उस समय उनको उससे भी बुद्धि हटने लगी। तो एक बार उनको गुरु के सामने बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, सडनली बाबा उठने लगे उस दिन। तो उनके जो पुत्र वधू, ब्रजेंद्र दादी जिनको कहते हैं, तो दादी और जशोदा माता, मतलब उनके जो युगल थे, वाइफ थे, वो सोचने लगे आज दादा को क्या हुआ, क्यों उठे हैं? कभी इधर उधर भी नहीं देखते, लेकिन आज क्या हुआ दादा को? तो ही वॉज ऑलरेडी 60+, तो कुछ तबीयत तो कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है, क्यों उठ के नहीं जा रहे हैं? फिर माता जी को बिठाया और पुत्र वधू ने बोला मैं जाके देखती हूँ, आप बैठे रहो। वो दादा आगे आगे चलने लगे और पीछे पीछे उनके ब्रजेंद्र दादी भी गए। और थोड़े समय के बाद बाबा अपने ध्यान मंदिर में बैठे हैं, बहुत अच्छे ध्यान अवस्था में, और पद्मासन में बैठे हैं, बहुत एकाग्र होकर, बहुत शांतमय स्थिति में ध्यान में बैठे हैं। और उनसे जो शरीर से जो है पूरा एक प्रकाश ही प्रकाश, ऑरा ऐसा निकला है कि वो उनके पुत्रवधू देखने लगी कि बाहर से ये क्या हो रहा है। और थोड़ी देर में देखा कि पूरा कमरा जो है लाल लाल, बहुत प्रकाशमय, बहुत शक्तिशाली, येट इट वॉज वेरी कूल, शीतल। ऐसे नहीं कि प्रकाश सोचते ही बहुत गर्माहट, नहीं, बहुत शीतल, बहुत आकर्षणमय ऐसा वातावरण। बाबा का ऐसा रूप बनने लगा। और उनके मस्तक पर देखा कि एक प्रकाशमय किरण चमक रही है, जैसे आत्मा यहाँ पर चमक रहा है ना, ऐसे उन्होंने देखा, उनके पुत्र वधू ने देखा कि उनके चेहरे पर या इतना प्रकाश और मस्तक पर इतना लाल लाल सुंदर लाइट, एक सितारा जैसा चमक रहा है। और उनके मुख से एक डिस्टिंक्ट वॉइस, जैसे हम आकाशवाणी कहते हैं, कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सा सुनाई देता है। ऐसे बाबा के मुख से कुछ वचन निकल रहे हैं। और ये शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से अपना परिचय खुद ही दिया। तो ये मुख से 3 शब्द निकले, आकाशवाणी जैसा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा शिव अपना परिचय खुद ही दे रहा है कि मैं निज आनंद हूँ। आई एम द वन हु इज ऑलवेज देयर। निज मीन्स द वन हु इज अविनाशी, द वन हु इज ऑलवेज देयर। और मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। मुख से दादा को मालूम नहीं उनके मुख से क्या निकल रहा है, वो क्या हो रहा है बाहर, उनको कुछ नहीं मालूम। उनके मुख से ये शब्द निकले और बाबा जैसे लुप्त हो गए ये शरीर से या यहाँ की दुनिया से, उनको कुछ मालूम ही नहीं, ये भान से टोटली डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। एंड वो उनके मुख से ये ब्रजेंद्र दादी ने ये शब्द सुना और वो भी बाहर देखते हुए शौक हो गए कि क्या हो रहा है आज दादा में। फिर यहाँ पर जो लाइट देखा, सितारा देखा, ये कौन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से पूरा चेंज, बाबा का लाइफ जो है पूरा चेंज। वो तुरंत ही उनके जो पार्टनर थे, पार्टनर तो सिर्फ नाम मात्र ही थे, क्योंकि बाबा का ही गुडविल था, उनका ही कैरेक्टर इतना अच्छा था, तो उनका ही गुडविल और उनका ही पैसा, लेकिन नाम मात्र एक सेवक राम करके एक वो पार्टनर थे। उनको तुरंत ही बाबा ने टेलीग्राम भेजा, उस समय टेलीग्राम्स का टाइम था,
तो अलफ को अल्लाह मिला. अलफ मीन्स वन, हाँ, मीन्स नंबर्स में बी मीन्स दो, राइट है ना माता जी, सिंधी में ऐसा ही है ना. तो बाबा ने बोला अलफ को अल्लाह मिला, मीन्स द फर्स्ट पर्सन दैट इज़ ब्रह्मा, दैट इज़ लखीराज बाबू, उनको अल्लाह मिला. बे को मिली झूठी बादशाही. दूसरा पर्सन जो है, जो पार्टनर है, आपको झूठी बादशाही मीन्स जो आपको चाहिए, हाँ. तो उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे को तार मिला परमात्मा से, मैं अब निकल चुका हूँ और आपको जो करना है वो करो, मैं अभी आई एम पार्टिंग फ्रॉम द बिजनेस. तो वो पार्टनर ने सोचा कि क्या हो गया, मेरे से कुछ भूल हो गई क्या, क्यों ब्रह्मा बाबा मीन्स दादा वांट टू लीव द बिजनेस. तो उन्होंने सोचा, लेकिन ब्रह्मा बाबा इसलिए कि आप जो भी करना है, जो लेना है आप ले लो, मैं नहीं आता हूँ, मेरा कोई अकाउंटेंट नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएंगे, आपको कितना लगता है मेरा शेयर उतना मुझे दे दो, मैं अभी से बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ. ये एक दिन की बात नहीं है, 4-5 साल से उनके अंदर ये चलता था, चिंतन चल रहा था कि उनको इतना चेंज, फर्स्ट विजन से लेके उनका चेंज शुरू हुआ. तो थर्ड विजन में मतलब ये समय था परमात्मा शिव निराकार जो इस सृष्टि पर पधारे एक शरीर का माध्यम लेकर. नर शिव अवतार, नरसिम्हा अवतार जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग में, नर के अंदर शिव का अवतरण, राइट. उसमें आप कहानी में सुनेंगे तो नरसिम्हा अवतार का, मैं दिन में भी नहीं आता हूँ, मैं रात में नहीं आता हूँ, मैं घर में नहीं आता हूँ, या बाहर नहीं आता हूँ, या मैं ये ऐसा, मैं ऐसा. तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो कैसा टाइम, किस स्थान, कैसा आता है, मैं नर भी नहीं हूँ, मैं पशु भी नहीं हूँ, ये सब बताया ना. तो ये क्या है एक्चुअली. तो नर का शरीर शिव ने लेकर, इसको ही हम कहते हैं परकाय प्रवेश. काया मीन्स व्हाट इज काया? काया इज शरीर, द बॉडी. तो ही डजंट हैव हिज ओन काया बिकॉज ही इज इनकॉर्पोरियल, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट. तो उनका अपना काया नहीं है, पर काया, दूसरों के काया का आधार लेकर अपना जो काम है वो करता है. तो परकाय प्रवेश हुआ और अपना जीवन को संपूर्ण चेंज किया. तो यहाँ से अपना जीवन पूरा कंप्लीटली चेंज, नया चैप्टर शुरू हुआ. बिफोर all these sakshatkars, visions, and after the visions, how, this is what I said, how Pitashri Brahma Baba, I mean Dada Lekraj has become Pitashri, Prajapita Brahma, जो सभी का पिता. पिता यूजुअली किसको कहते हैं? अभी जैसे कहते हैं द फादर ऑफ द साइंस, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, the father of this and this. What does that mean? The one who invents, the one who first started going in that path. That one is the father of that one. So Brahma Baba also has given the name Pitashri or Prajapita. How he is father? And Prajapita, father of the people. Parampita is there. Parampita is the father of all souls. And we have all our own Laukik fathers also. All of us have separate father. Everyone have their own father. And this one is Prajapita, the one who guided the new path. The one who first threaded in that path. सब प्रजाओं के लिए
जो अच्छा होता है, जो होना चाहिए, उस रास्ते पर चलने वाला। तो प्रजापिता ब्रह्मा मीन्स हु इज ब्रह्मा? Creator God. So what is he creating then now? Brahma. Already we are there. So what has he created specially or newly? So he has created the new world order which is going to come. He himself followed and made everyone follow that path. इसलिए उनको प्यार से हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सो परम पिता का जो रथ ब्रह्मा, राइट? तो अभी कंटिन्यू करने के पहले आई रिक्वेस्ट चेयरमैन, we'll have few minutes of meditation because this is the time where how Brahma Baba has become complete, and how Shiv Baba has entered in Brahma Baba, how his revelations taken place, his visions taken place. तो ऐसा अपने जीवन के लिए बनाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है ना? तो few minutes we'll have meditation. So for that I request Sandeep bhai, who has come specially from Mumbai, Pune. You might have heard before also. Aye, bhai sahab. You might have heard him before also, right? Who is very good motivational speaker. He is Vastu master, and he has done many things like that, Feng Shui and so many other things also. And with simple, easy methods, how we can change our lives. So for that kind of thing, he does. And he is a very spiritual master also. Spiritual master also. He travels across India in many places and gives many sessions, spiritual sessions like this. So he has come, fortunately, suddenly today. So I want him to give few minutes of meditation experience, and then we will continue few more minutes. Is that okay? ओम शांति। आप सभी को देखकर बड़ी खुशी होती है कि ऐसे कलयुग के बाबा की भाषा में, भगवान की भाषा में माया का पाम है, मतलब फुल फ्लैश में साइंस होते हुए भी आप साइलेंस के लिए यहाँ आते हो, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपका ये इंटरेस्ट ही आपको साइलेंस अंदर की जगाने के लिए सहयोग देगा। जैसे बहन जी ने बताया, पूरी लाइफ स्टोरी एक्चुअल खोने वाली है और अपने आप को खोजने वाली है। हम कहाँ हैं इस स्टोरी में? क्योंकि स्टोरी सुनते समय जनरली हम हीरो बन जाते हैं स्टोरी के, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ से खोजने के लिए ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन शुरू करने के पहले मैं सिंपल एक 2-3 बातें, एक 7 स्टेप टू रीच हियर, सिंपल भाषा में बात करके हम मेडिटेशन पर जाते हैं। जो दीदी ने बताया उसको कंक्लूड करते हुए, जो भगवान ने जिनको अपना रथ बनाया और वो उस तक, वहाँ तक संपूर्णता तक पहुँचे, उसके लिए 7 स्टेप से जाना पड़ा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है संसार को समझना है। जब तक वो हीरे स्टोन नहीं बन जाते तब तक संसार को समझना है। फिर समय आता है, समय काल हमको वैरागी बनाता है, और जब काल वैरागी बनाता है, संन्यास समय कुछ शिक्षा देता है, समझ देता है। तो समझ जरूरी है, अपनी भी, संसार की भी और समय की भी। उसके बाद वैराग्य, छोड़ने की इच्छा होती है तो संन्यास हो जाता है। कुछ
जिसको समझ गया वो सन्यासी बन जाता है। कुछ चीज़ें छूट जाता है कि ये काम की नहीं है तो छूट जाती है। उसके बाद एक स्टेप आती है संकल्प करते तपस्या का, और छठी स्टेप आती है समर्पण। उसके ऊपर अपने आप को अर्पण कर देते हैं, तब जाके संपूर्ण बनते हैं। तो ये 7 स्टेप्स हैं। इन स्टेप को हम चेक करते हैं आज मेडिटेशन में। थोड़ा अलर्ट होके बैठे। थैंक यू। रेड लाइट कर दीजिए। ध्यान मुद्रा में बैठने की कोशिश करें। 1 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें। क्लोज योर आइज। ओके। अपनी सारी शक्ति को भ्रुकुटी में महसूस करें, फील करें। मैं अ पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी सिंहासन पर इस संसार के मालिक को मिलने के लिए या इस संसार के मालिक की मिल्कियत के अधिकारी बनने के लिए हमें अपने आप का मालिक होना पड़ता। मैं इस तन का मालिक हूँ, मन का मालिक हूँ, बुद्धि विवेकवान है, संस्कार मेरे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वर के समान है। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। इस संसार में स्वयं भगवान का अवतरण हो चुका है। इस संसार का सार समझाने, संसार भागना है। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, किसके लिए भाग रहे हैं पता नहीं। जो मिला वो भी छूटने वाला है। क्या इसके लिए भाग रहे हैं? चेक करें संसार क्या सार है। अगर हम समझ जाए तो ब्रह्मा के जीवन को समझ सकते हैं। समय क्या शिक्षा दे रहा है? कौन सा समय चल रहा है? मन को मैला करने का, मन का मालिक बनने का। क्या समझ है हमारे पास? क्या हम अपने आप को जानते हैं? अपनी शक्ति को, अपने इस संसार के रोल को मैं जानता हूँ। क्यों आया हूँ मैं संसार में? जिसने भेजा है उसने कुछ काम के लिए भेजा होगा। बुराई से, नकारात्मकता से, ईर्ष्या गुनाह से क्या अब तक नफरत नहीं हुई? गंदी चीजें क्या मुझे अब गंदी लग रही है या क्लियर दिखाई दे रही है? नहीं, मैं मन का मालिक हूँ। मुझे संकल्प, दृढ़ संकल्प करना है। मन का मैं मालिक, मन का मैं गुलाम नहीं। न वस्तुओं का, न साधनों का, न व्यक्ति को गुलाम। मैं मालिक हूँ, क्योंकि मैं मालिक की संतान हूँ और मालिक के सारे गुण मेरे अंदर हैं। सिर्फ स्मृति से समर्थ्य आती मेरे अंदर के गुणों को, शक्ति को, वैल्यूज को ऑलरेडी है। जागृति की जरूरत है, जगाना है। मालिक को मिलने के लिए,
मालिक बनने की जरूरत है। मैं मन का मालिक हूँ। मन मित्र है, मंत्री है, बुद्धि गुणवान विवेकवान है। मेरे अंदर वही जो सदा के लिए आनंद स्वरूप है, मैं भी उसकी संतान सच्चिदानंद हो, आनंद स्वरूप हो, ज्ञान सूर्य की संतान ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान की समझ प्रकाश स्वरूप हो। राजयोग हमारे अंदर की शक्ति को भगवान से मिलने वाली ब्लेसिंग्स को मनोबल बढ़ाने के लिए यूज करते हुए संसार में रहते हुए संसार से अलग इस संसार में हम सभी उस परमात्मा के मैसेंजर है, शांति दूत है। मैं अपने जीवन को, अपने मन को, अपने स्थान को कंप्लीट साइलेंस की शक्ति से भरपूर करता शांति का सागर और मैं शांति दूत हमारा जन्म उस परमात्मा का दिव्य संदेश वाहक बनने के लिए हुआ है। अपने जीवन में आध्यात्म को स्थान देते हुए, आंतरिक शांति को बढ़ाते हुए संसार में शांति के लिए सहयोगी बनने की जरूरत है। एक चित्र देखने की कोशिश करें। ब्रह्मा जो रथ है सर्वशक्तिवान का, वो हमारे सामने है, लाइट बॉडी में, प्रकाश वाले शरीर में, और उनका हाथ हमारे सिर पर है। आज दिल से ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को धन्यवाद दें, क्योंकि आज से आपके सिर पर सर्वशक्तिवान का और भाग्य विधाता का हाथ है। दिल से धन्यवाद दें। ओम शांति। अपने हाथों को रब करते हुए आंखों को लगाएं।
ओम शांति। इस दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति अर्थात जिनकी याद से अंदर की ताकत समर्थी आ जाए। तो आप सबको ये स्मृति अपने अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत करने के लिए सहयोगी बने। आपका जीवन भी शांति दूत समान बने, आपका परिवार खुश रहे, आप निर्विघ्न रहे, ये शुभकामना करते पूरा करते। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू संदीप भाई, वो बिज़ी रहते हुए मेरे रिक्वेस्ट से खास आए हैं। थैंक यू संदीप भाई। अच्छा लगा सभी को? मेडिटेशन किया, फील किया? हाँ, परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके सिर पर है और आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत कर रहे हैं। सब कुछ है अपने अंदर, लेकिन जागृति की ज़रूरत है। यू हैव टू इन्वोक देम, राइट? तो हम कहानी में थे, तो परमात्मा शिव का आगमन होकर फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा बने और उनके जीवन ट्रांसफॉर्म होना, परिवर्तन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप कैसे उनका परिवर्तन हुआ, हाउ द लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एंड बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। तो 1936 में उनका ऐसे जब लास्ट साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का अवतरण इस धरती पर हुआ, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह से, हुआ रेल के राही। ये शब्द थे बाबा के मुख से। ये उन्होंने टेलीग्राम से उनको भेजा, फिर उनका जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। एंड देन ही हैज़ गिवन सम टाइम फॉर हिमसेल्फ। ही वेंट टू कश्मीर and started thinking about what is going on and how he has to become an instrument for world transformation. तो अपने लिए टाइम दिया और फिर सत्संग शुरू हुआ। तो सत्संग में सिंध में इतने लोग आना शुरू हुआ कि 1000 लोग हर रोज़ सत्संग में। और जो आते थे बाबा, मतलब ब्रह्मा बाबा, बुजुर्ग 60 इयर्स, अनुभवी रथ, अनुभवी शरीर, लेकिन उनको देखते देखते लोगों को उनके शरीर दिखाई नहीं देता था, वो लुप्त हो जाता था और उनसे एक सुंदर श्री कृष्ण का शरीर दिखने लगा, छोटा श्री कृष्ण, नन्हा सा श्री कृष्ण दिखने लगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब साक्षात्कार होने लगे सभी को, जो देखा उनको। जो घर में रह रहे हैं उनको भी साक्षात्कार होने लगा कि आप इनके पास जाओ, ब्रह्मा, बुजुर्ग, पिताश्री। तो लोग बहुत आकर्षित हुए और फिर बहुत बात चलने लगे पूरे सिंध में। वो हैदराबाद में रहते थे, ये हैदराबाद की बात है, 36-37 तक हैदराबाद में रहे। फिर हैदराबाद जो है एक छोटा सा शहर, वो सिंध हैदराबाद पाकिस्तान वाला। फिर कराची है बड़ा शहर, जैसे पुणे और बॉम्बे जैसा। पुणे थोड़ा नज़दीक और छोटा, और बॉम्बे जैसा बहुत फैशनेबल, बहुत बड़ा कराची। तो बाबा हैदराबाद में फिर ये सिलसिला चला, साक्षात्कारों का बहुत समय तक चलता रहा। सभी को ये साक्षात्कार होने लगे। फिर जो आते थे ना सत्संग में, उनको एक आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान, जैसे अभी सुनाया संदीप भाई ने, मैं कौन, कहाँ भाग रही हूँ, जिसको पकड़ने का कोशिश करती हूँ वो है ही नहीं है, रहने वाला ही नहीं है, किसके लिए मैं भाग रहा हूँ, मेरा विवेक किधर जा रहा है, मेरा संस्कार किधर जा रहा है। तो आत्मा का ज्ञान से उनमें जो दुख दर्द थी वो सब निकलने लगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया ना, ये सी फेयरर्स थे एंड बहुत सारे डेथ्स, मतलब वो वापस आने तक मालूम नहीं कि बेटा ज़िंदा है या पति ज़िंदा है या नहीं। और फिर एक बार गए तो फिर गए, क्योंकि डूब जाता था जहाज़, फिर अपना माल भी जाता था, कब कैसे होंगे मालूम नहीं, बैंकरप्ट भी हो जाते थे। तो बहुत दुखी रहते थे माताएं। और जो सत्संग में आते थे, बहुत आत्मा का जब ज्ञान मिल जाता है ना,
तो ये सब जो होता है ना, उससे दुख महसूस नहीं होता है. मतलब यू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, दो इट इज़ ऑल हैपनिंग, लेकिन आप जो है बहुत उसमें भी बहुत स्टेबल रह सकते हैं, आप बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं. यही तो मेडिटेशन की कमाल है. सब कुछ होता है आपके आजू बाजू में, लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे उस समय, या आप कितना स्टेबल रहे उस समय, ये मैटर करता है. तो तब उनको ये महसूस होने लगा, फिर अपना जीवन परिवर्तन होने लगा. फिर इतना कि अमेरिका में टाइम्स मैगज़ीन उस समय भी बहुत फेमस था, उसमें भी लिखने लगे कि एक बुजुर्ग दादा है सिंध में, उनको देखने से सभी को साक्षात्कार हो रहा है. वो है 60+, लेकिन उनको देखे तो एक बाल कृष्ण, नन्हा सा कृष्ण दिख रहा है. ये क्या जादू चल रहा है. तो कोई भी चीज़ शुरुआत में एक्सेप्ट होता है, फिर थोड़े देर के बाद फिर लोग थोड़ा सा रिजेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि जब वो समझ में आता है कि वो पालन करने की बातें, धारणाएं जब आती हैं, तो एक रिपल्शन शुरू होता है. वो फेज़ आप क्रॉस करेंगे ना, फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे. तो कोई भी अच्छे चीज़ को थोड़ा फेस तो करना ही पड़ता है. तो बाबा ये जब सत्संग शुरू किया तो बहुत अच्छे शुरू हुआ, लेकिन जब यहाँ की जो धारणाएं हैं मुख्य, पवित्रता की बात कहो, ब्रह्मचर्य की बात कहो, या अन्न पान शुद्धि हो, ऐसी चीज़ें सुनते सुनते लोग बोलने लगे कि यह कैसे हो सकता है. हम दुखी रहना ना चाहते हैं तो क्या करेंगे. दुख का कारण समझ में आया तो उसको छोड़ो, वो बोले तो भी कुछ रिजेक्शन तो आता है. और जो भी आते थे ना सत्संग में, तो उस समय तो कमेंट्री नहीं, म्यूज़िक नहीं, रेड लाइट नहीं, बाबा का चित्र नहीं, कुछ भी नहीं था. शुरुआत स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड बाबा को, ब्रह्मा को भी मालूम नहीं उनको क्या हो रहा है, क्या करना है. हमारे सामने तो इतने सारे अच्छे लोग हैं, उनको जस्ट फॉलो करना है, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं थे. और इतना बड़ा बिजनेस और सब कुछ छोड़ दिया और अपना जीवन परिवर्तन और लोगों को लेके चलना शुरू किया. तो पहले बाबा ओम की ध्वनि कराते थे, ओम चैंटिंग. तो ओम चैंटिंग करते ही मन इतना शांत शीतल कि वो इस दुनिया से गुम्मे हो जाते थे. तो ओम का चैंटिंग जहाँ चलता है तो लोग ऐसे बोलने लगे कि जैसे अभी भी ब्रह्मा कुमारी इसको क्या बोलते हैं, यूजुअली बहुत सारे जगह पर ओम शांति वाले कहते हैं, है ना. हाँ, ओम शांति वाले. तो उस समय भी ब्रह्मा कुमारी इसको, मतलब तब तो नाम भी नहीं पड़ा था ब्रह्मा कुमारी, तो उस समय भी ओम की चैंटिंग चलती थी. तो ओम मंडली नाम आया, और जो जो जाते थे उनके नाम के आगे ओम लगाना शुरू किया. मतलब ओम दादा, ओम बाबा, हाँ, और जो भी जाते हैं उनके नाम के आगे ओम लगाना शुरू किया. तो उस समय बाबा के पास बहुत सारे बच्चियाँ भी आए, जो छोटे छोटे बच्चियाँ या यंग कुमारीज जो थे वो भी आए, बहुत सारे साक्षात्कार होने लगे. फिर उनको एक जीवन का परिवर्तन देखते हुए बहुत अच्छा लगने लगा. फिर थोड़ा समय के बाद जब ये सब एंटी ओम मंडली भी फॉर्म हुआ, हाँ, जो सिंध कम्युनिटी के जो कुछ परिवार है जिन्होंने अपोजिशन करना भी शुरू किया, एंटी ओम मंडली भी फॉर्म किया, बहुत पत्थरबाजी भी किया या बच्चों को निकालने के लिए कोशिश किया. लेकिन बच्चे जो थे, बाबा इतना प्यार दिया कि अपना जो टाट बाट, मैंने बताया ना शुरुआत में सिंधी कम्युनिटी का कैसा रहता है, ऐसे जो रहने वाले, और बाबा उनको इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना संपन्न रखा कि उनको अपना घर याद ही नहीं आता था. अपने परिवार वालों को भूलने जितना प्यार. और अपना जो स्थिर चर संपत्ति है, उस समय ऐसा कहते हैं कि 33 करोड़ एक बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और पूरा उसको समर्पण कर दिया. उसके बाद बाबा
पैसा फिजिकल उसके ऊपर हाथ भी नहीं लगाया जब तक शरीर नहीं छोड़े। लगभग 30+ ईयर्स अभी कभी नहीं उनको संकल्प आया कि ये मेरा ही है। और उनके जो वाइफ है या बच्चे हैं उनको भी बोला कि बाबा कि ये अभी हमारा नहीं है, आपका नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये मेरे पिताजी ने किया, ये भगवान का जो देन है और भगवान के कार्य में मुझे सफल करना है। और उस ट्रस्ट जो बनाया बाबा ने, माताएं कुमारियों का ट्रस्ट बनाया। मैं बता रही हूँ जब शुरुआत की बात, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर था उस समय महिलाओं के लिए, और यहाँ पर माताएं कुमारियों के लिए बाबा ने ट्रस्ट बना के दिया जिसमें अपने घर वाले कोई नहीं है। मतलब इतना डिटैचमेंट, अपना कुछ नहीं। उनका जीवन कैसा है। तो फिर अपोजिशन जब शुरू हुआ या यहाँ पर छोटा स्थान लगने लगा, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तब थोड़ा समय के बाद 38 में ये बच्चों को लेके बाबा कराची में शिफ्ट किया। वहाँ से एक्चुअली एक सी क्रॉस करना था, एक 3-4 घंटे का रास्ता था। वैसे पहले एक ब्रिज होता था, वो आज भी है, वो नहीं था तो ज़्यादा दूर पड़ता था, लेकिन उसके बाद ये ब्रिज से आते थे। तो वो कराची में रहना शुरू किया। और बाबा ने जो भी बच्चे आते थे, जो भी इंटरेस्टेड थे, माताएं या कुमारियाँ जो भी आते थे, बाबा ने बोला कि आप परमिशन लेके आना है, कि हम बहुत खुशी से दादा लेखराज जो पिताश्री ब्रह्मा, उनके पास हमारी बेटी या किसी को भी घर वालों को भेज रहे हैं अपने खुशी से कि अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए। तो ये लेटर लेके आना है, परमिशन लेटर। तो जो परमिशन लेके आते थे उनको ही अलाउ करना शुरू किया, क्योंकि अपोजिशन इतना चलता था। फिर बाबा ने सोचा, और जो बच्चियाँ आते थे उनको बाहर की स्टडीज़ भी चाहिए और ऐसा अलौकिक पढ़ाई भी चाहिए जिनसे अपना जीवन ही परिवर्तन हो। तो फिर उसके बाद बाबा ने सोचा एक बोर्डिंग स्कूल खोला जाए। तो ये बोर्डिंग स्कूल भी बाबा ने खोला। इसमें हर एज के बच्चे भी, छोटे छोटे भी आए थे, और बाबा ने कुछ बड़े बच्चियाँ जो होते थे उनको टीचर के रूप में नियुक्त किया कि उनको बेसिक पढ़ाई जो है वो भी सिखाओ। तो ये 1937 की बात है जब बाबा ने ये बोर्डिंग स्कूल भी खोला, और उनको सब बच्चों को सब दोनों प्रकार की पढ़ाई, जो लौकिक पढ़ाई भी होती है और अलौकिक पढ़ाई भी होती है। और आई एम टॉकिंग अबाउट 1937, एंड आप देख रहे हैं उस समय कितना फैशनेबल दुनिया था सिंध उस समय भी। तो आप उनके ड्रेस से भी समझ सकते हैं, उस समय भी बच्चों को बाबा ने ऐसे ही पहनाए थे यूनिफॉर्म, और उनका पूरा दिनचर्या जो है बहुत अच्छे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बच्चियों को, या जो भी बच्चे आए थे बड़े या जो भी आए थे, कुछ परिवार भी बाबा के परिवार के साथ समर्पित हो गए और सब साथ में चलना शुरू किया। और उसी टाइम पर एक बहन, जो यंग बहन आई, जिसको बाबा के, उनका लौकिक नाम था राधा। तो बहुत अच्छे मैट्रिक पढ़ लिए थे उसी टाइम पर उन्होंने, बहुत अच्छा सिंगर भी थे, राइटर भी थे, और सितार भी, वीणा भी सब बजाते थे। स्कूल में भी बहुत नंबर आगे लेते थे, बहुत फैशनेबल भी थे, क्योंकि उनके पिताजी जो थे पहले बॉम्बे में रहते थे। फिर वो वही मैंने बताया ना, बिजनेस में लॉस होता था, बहुत लोग मर भी जाते थे। तो ऐसे ही उनका पिताजी का देहांत हुआ तो बहुत दुखी हो गए थे, वो सिंध वापस आ गए उनके माताजी और सब। तो बाबा के पास जब आए तो उनके माताजी एकदम चेंज हो गए। उनकी माता है वो रोचा माता करके, तो वो एकदम उनका मन बहुत शांत स्थिर होने लगा, दुख को भूल गए। फिर बाबा भी ये ओम राधा में देखा कि इनमें कुछ क्वालिटीज़ है जो बहुत आगे ले जा सकता है। तो जो बच्चे आए थे इतने सारे 350 करीब बच्चे, बड़े, सब लोगों को बाबा बोर्डिंग में रखा
और घरों में रखा। कराची में बहुत सारे मकान लिए, एक जगह पर कुमारियों को, एक जगह पर भाइयों को, एक जगह पर माताओं को, अलग अलग रख के उनको परवरिश किया। कब तक? 14 ईयर्स। आप सोच सकते हैं किसी के घर में 350 मेंबर्स आए और तीनों टाइम खाना खिलाए तो कितने टाइम तक आप खिला सकते हैं। मतलब वो इतना कमाई भी किए थे कि इतने बच्चों को, बड़ों को 14 ईयर्स 1950 तक, इंडिया में 1950 में शिफ्ट किया, उस समय तक उनको बाबा ने इतना रॉयल ट्रीटमेंट दिया कि बाबा कहते थे तेल का खाना कभी खाया ही नहीं, वो घी से ही, देसी घी से खाना खिलाते थे। और बाबा कहते थे ये तो घासलेट है, केरोसिन है, ऐसे कहते थे। इतना अच्छा परवरिश बाबा ने किया हर प्रकार से, और ज्ञान योग से इतना शक्तिशाली बनाया कि तपस्या, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम 1936 to 1950, फ्रीडम मूवमेंट वॉज ऑन इट्स पीक। बहुत सारे चेंजेस, और इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न, और बहुत सारे कम्युनल राइट्स उस समय पर, बाहर ही नहीं निकल सकते। और बाबा इन सभी को इतना सुकून से, इतना गुप्त रखा कि सब सेफ। और इतना समय, इतना तपस्या भी किए, मेडिटेशन में रहे सालों साल तक कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ इतना पक्का कराया बाबा कि ये बहनों को देखे तो बाद में सभी को एक देवी जैसा दिखने जैसे, इतना एम्पावर किया बाबा ने। तो उसी टाइम पर राधा आए थे, तो ओम राधा को बाबा ने नियुक्त किया, आप भी एक यज्ञ माता बनकर। बहुत छोटी कुमारी थी, यंग एज में 17-18 ईयर्स में आई, लेकिन बाबा ने बोला आप यज्ञ माता बनकर सबको पालना करने के लिए, सेवा करने के लिए निमित्त बनाया, माँ जैसे पालना किया। और उनको सब प्यार से जगदम्बा सरस्वती या मम्मा प्यार से कहते थे, मम्मा मीन्स माँ। तो यहाँ तक कि उनकी पालना, कि उनकी माँ जो लौकिक माँ थी, जो अभी मैंने दिखाया रोचा माता, वो भी उनकी बेटी को माँ कहने लगी, इतनी प्यार से परवरिश किया मम्मा ने। तो फिर बाबा बच्चों के साथ भी, और मम्मा भी रहती थी, और सबको रोज़ सत्संग भी चलता था। ये एक सीन आप देख रहे हैं कि ये एंटी ओम मंडली वाले 1937 में जो राइट्स किए थे, या बहुत कुछ किया था, और पत्थरबाजी भी किया था। फिर ये जो रहते थे वहाँ पर, उस मकान में आग भी जलाया था। और बाबा मतलब त्रिकालदर्शी परमात्मा को सब कुछ मालूम है जो होने वाला है। और जिस समय ये लोग आग लगाने वाले थे, उस समय बाबा पीछे के गेट से सबको क्लिफ्टन बीच, कराची में एक है क्लिफ्टन बीच करके, जैसे बॉम्बे में जुहू बीच है सब फेमस है, ऐसे क्लिफ्टन बीच, तो वहाँ पर रोज सवेरे बाबा लेके जाते थे। उस दिन मतलब उस टाइम पर नहीं जाते थे, लेकिन बाबा उस दिन उनको उस टाइम पर लेके गए। और लोग सोचने लगे, लोग अंदर है, और सोचा कि हमारे बच्चे मर जाए तो भी चलेगा, लेकिन इनको तो बंद करना ही है हमको। तो पूरा तेल, घासलेट सब लगा के जलाने की कोशिश किया, लेकिन बाबा इतना सेफ पीछे से सब क्लिफ्टन बीच में योग करने आए। फिर 1 घंटे के बाद आए तो घर पूरा, मकान पूरा जल गया था। उस मकान का नाम है लाखा भवन, लखी भवन, लखीराज बाबू का भवन। तो इसको ही शास्त्रों में लाखा भवन के पांडव जब थे अंदर, क्या किया? हाँ, तो उसको जलाने की कोशिश किया, लेकिन जल गए क्या? हाँ, परमात्मा को मालूम था क्या होने वाला है, तो पहले से ही वो लोग सेफ रहे, है ना। तो आप ये भी देख रहे हैं, और ये क्लिफ्टन बीच था जो नीचे देख रहे हैं, ये क्लिफ्टन बीच है, और अभी भी है, बहुत फेमस पॉइंट है वहाँ बीच के पास। तो अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें तो फिर आएंगे हम 1950 में। मतलब ये सब पार्टीशन भी हो गया, 47 में इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न भी हो गया।
फिर वहाँ जो सिंध प्रोविंस का जो मुखी थे, जो मेन थे, जिसको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहते थे, क्योंकि एक एक प्रोविंस का एक एक अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर होते, ऐसे होते थे उस समय। जो उस समय का था मुस्लिम्स ही थे, लेकिन उन्होंने बोला कि बाबा बहुत फेमस थे, क्योंकि वो उनका बिजनेस के कारण भी और उनके गुणों के कारण भी पूरा सिंध में फेमस थे। तो बाबा को वो पहले से ही जानते थे बहुत सारे, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से मत जाओ, ये पाक है, आपको पाक बनाना है। पाक मतलब सिंधी में पवित्र, प्योर। तो जो पाकिस्तान बाद में बना वो क्या है, पवित्र स्थान, उसके नाम से। तो बाबा को उसी टाइम पर वो लोग बोलते थे आप पाक वाले हैं, आप इधर ही रहना है, आप कहीं मत जाओ, भारत में मत जाओ, आप इधर ही रहो। लेकिन शिव परमात्मा का डायरेक्शन था आप इस स्थान से निकल जाओ, क्योंकि ये फ्यूचर में सेफ स्थान नहीं है तुम बच्चों के लिए। तो बाबा का जो डायरेक्शन के अनुसार फिर बाबा ने डिसाइड किया, जब रिपब्लिक भी हो गया इंडिया का, तो मई में 1950 मई में फिर इंडिया वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया में आने का संकल्प लिया। और उस समय जो पद पे थे, जो कलेक्टर्स या जो भी थे, सब ने बहुत अच्छा सा उनको बोला कि आपका जो भी है सब चीज़ें लेके जाओ, लेकिन एक शिफ्ट करते हैं, 350 मेंबर्स रहने का एक स्थान छोड़ के आप आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लेके आ सकते। एक जहाज़ को बुक किया और ओखा जो गुजरात में है, वहाँ से कराची से यहाँ ओखा में आए। और ये वही है जो बच्चे सब पैक करके सब कुछ रेडी रखा है। और अब किसी ने जानकी दादी को देखा होगा, ऊपर जो है, हाँ इस चित्र में आप अच्छे से देखेंगे, ऊपर छोटी सी बेबी जैसी है, जानकी दादी है। तो सब दादी ऐसे थे उस समय। तो फिर वो लोग तो उन्होंने फिर शिफ्ट किया और ये जहाज़ को बुक किया और पूरा सब चीज़ें और सब लोग निकले। और ये भी जहाज़ का ही एक फ़ोटोग्राफ है ब्रह्मा बाबा के साथ सब लोग। फिर वहाँ से ओखा से जो है गुजरात में जामनगर के पास, वहाँ से फिर आबू रोड तक बाबा ने बोला एक ऐसा स्थान है ढूंढो कि बहुत अच्छा सुंदर स्थान और पहाड़ों के बीच में तपस्या करने के लिए अच्छा स्थान कौन सा होता है, पहाड़ों के ऊपर होते हैं। तो पहाड़ों के बीच में, और वहाँ उस समय ऐसा था कि 1950 में या उसके पहले से ही जो डिवीज़न हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय बहुत सारे फैमिलीज़ जो है इंडिया में आ गए थे पहले से, 47 के पहले से। तो वो लोग बुलाने लगे कि आप अभी तक वहाँ पर ही है पाकिस्तान में, आप अभी हिंदुस्तान में आ जाओ। और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया, बहुत लोगों ने, बॉम्बे दिल्ली में बहुत सारे सिंधी उस समय के जो सिंधी है वो आ गए थे, और उन्होंने एश्योरेंस दिया आप इधर आएंगे तो हम संभालेंगे आपको, हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग तो जेन्युइन थे, कुछ लोग ऐसे भी थे आने दो अभी कैसे करेंगे ये देखा जाएगा, मतलब इनका समाप्त हो जाए। अपोजिशन वाले ऐसे भी थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। फर्स्ट एक टीम को बाबा ने भेजा, 3-4 लोगों को, स्थान देख के आओ पहले, कौन सा स्थान ठीक रहेगा इतने लोग रहने के लिए, एक ही दिन तो नहीं निकल सकते ऐसे अचानक। तो पहले देख के आओ। ये टीम आया, बहुत स्थान देखे, और एक सिंधीज का गुरु होते थे उस समय, शिवानंद महाराज कुछ नाम था, उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए तपस्या करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है आरावली माउंटेन्स। आरावली माउंटेन्स का शास्त्रों में भी इतना अच्छा मान है कि हिमालयस के बाद इतना सारा पवित्रता शक्ति आरावली माउंटेन्स में, तो वो स्थान आपके लिए अच्छा है। फिर बाबा के टीम जो है वो लोग गए वहाँ पर, देखा, और फिर पूरा शिफ्ट हुए 1950 में। तो ऐसे जहाज़ में आए, फिर वहाँ से ट्रेन में आए, ये जहाज़ था, और ये ट्रेन में आए। फिर ये मनमोहिनी दीदी जी, जिनके परिवार वाले ही बाबा को बुलाए थे इधर आने के लिए, तो
दीदी भी, मनमोहिनी दीदी बहुत हाई फैमिली से आए थे, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के बाबा के साथ आए। बाबा से बहुत प्यार भी था और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालते थे। 1950 से जो है संस्था यहाँ पर शिफ्ट हुए माउंट आबू जो राजस्थान में है। तो 1950 से लेके यहाँ इंडिया में भी बहुत सारी सेवाएं किए। 52 में बहुत ऑफर्स मिले। बाबा ने बोला अभी जो आपने सीखा है पूरे विश्व में सभी को सिखाना है। आप सिर्फ शांतिमय रहे तो चलेगा नहीं, सभी को शांतमय सुखमय बनाओ। तो फिर दीदी के ही परिवार वाले दिल्ली में ऑफ़र किया, फिर उन्होंने ही एक सेंटर खोल के दिया कि आप ये सभी को सिखाओ। ऐसे 52 में दिल्ली में फर्स्ट सेंटर खुला। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 140 कंट्रीज़ में सेंटर्स हर रोज़ एक सेंटर के हिसाब से पूरे विश्व में खुल रहा है। तो फिर बाबा इतना सिंपल लाइफ रहता था, उनका पूरा शरीर की प्रवृत्ति भी चेंज हुई और उनका ड्रेसिंग भी चेंज हुआ, सब कुछ। और बाबा इतना एक्टिव थे, ही लेफ्ट बॉडी इन 1969 एट द एज ऑफ 93। 93 के एज वाले कैसे रहते यूजुअली, लेकिन बाबा एकदम इतना फिट थे, सब शरीर के काम करते थे। और रहना पर्वतों के ऊपर जंगल में, कोई ऐसा नहीं कि रास्ता भी है गाड़ियाँ भी है। पूरा अमाउंट में एक ही टैक्सी रहता था उस समय। जब दीदी भी कुलदीप दीदी है ना, दीदी भी जाते हैं तो बोलते हैं कि हम जब जाते थे तो भी एक ही टैक्सी रहता था उस समय। कोई ऐसा रोड भी नहीं ठीक से माउंट में जाने के लिए नीचे से। तो ऐसा टाइम पर बाबा इतना प्यार से सब सेवाएं करते थे। बच्चों को रोज़ सैर पर लेके जाते थे, जंगलों में जाते थे, रोज़ बेर खाते थे। कितना टाइम सब कुछ रहेगा, पैसा बैठ के खाते रहे आप इतने हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो कितना टाइम चलेगा। तो एक टाइम ऐसा भी आया कुछ धन राशि नहीं था, तो बच्चों को वो एहसास ही करने नहीं दिया बाबा की कुछ नहीं है। बाबा कुछ ना कुछ युक्ति रचते थे और जंगल में लेके जाते थे, बेर खिलाते थे। कुछ भी बच्चे बोलते थे बाबा अभी हमको खाना ही नहीं है, इतना बेर खा लिया। मतलब युक्ति देखो कैसे नहीं है, ये कभी नहीं आया। बाबा के मन में भी नहीं आया, बच्चों के मन में भी नहीं आया। और बाबा इतना सिंपल रहते थे। और बाबा कभी भी चश्मा भी नहीं पहना या डेंचर्स भी नहीं था। हमेशा नीचे पद्मासन में बैठते थे। 93 इयर्स में भी कभी चेयर का सहारा नहीं या पीछे का टेका नहीं लिया। इतना फिट, इतना एकदम फिजिकली भी एक्टिव, मेंटली तो एकदम स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड, ऐसी लाइफस्टाइल। और बाबा रोज़ एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, बच्चों को मुलाकात भी करते थे और बच्चों को लेटर्स लिखते थे। ये बाबा की बहुत अच्छी खूबी। लगभग नियरली 100 लेटर्स। उस समय पोस्ट कार्ड होता था छोटा येलो कलर का, वो पोस्ट कार्ड में बाबा लेटर लिखते थे। तो आप देख रहे हैं जो रेड राइटअप है, तो बाबा का सिंधी भाषा और एक बहन उनको हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके भेजते थे सभी को भेजने के टाइम पर, क्योंकि सभी को सिंधी पढ़ना नहीं आता था ना। तो ऐसे बाबा 100 लेटर्स तक लिखते थे। और आप जो देख रहे हैं ये कुटिया है बाबा जहाँ पर रहते थे, लेकिन उसके पहले बाबा का कुटिया ऐसा होता था। अभी तो थोड़ा सा रेनोवेशन वो सब किया है, ये मेडिटेशन रूम बना है माउंट आबू में। लेकिन अभी पहले जो था बाबा ऐसे बहुत छोटे से कमरे में, और ठंडी इतना -15 -16 माउंट में, दिसंबर जनवरी में माइनस में। फिर बाबा का एकदम ड्रेस के कभी चेंज नहीं होता था, वही धोती वही कुर्ता। और बाबा कभी भी ऐसे सहारा भी ज़्यादा नहीं लेते थे कि इतना लेयर्स एंड लेयर्स पहनो तभी मैं वार्म रह सकता हूँ। मतलब प्रकृति जीत आत्मा। तो इतना सिंप्लिसिटी से रहे। और उसके पहले ही ऐसा था कुटिया, 69 मीन्स कुटिया ऐसा था। लेकिन ये है बाबा का कमरा जहाँ पर बाबा रहते थे, और ये कुटिया में भी रहते थे बाबा। ये है कुटिया उस समय का 65 का। तो ऐसे कुटिया में बहुत सिंपल लाइफ, बच्चों के लिए कुछ बनाया, बिल्डिंग्स वगैरह मकान वगैरह, लेकिन बाबा कभी नहीं जाते थे नए बंगलों में। तो बच्चे कहते थे बाबा आप नए घर में क्यों नहीं जाते। बाबा हमेशा कहते थे कि भगवान जो है पुराने शरीर में आया, मैं नए घर में कैसे जा सकता हूँ।
भगवान का घर जो है ये पुराना है, तो मैं नया घर में कैसे जा सकता हूँ? इतना सिंपल लाइफ। हाँ, तो ये बाबा का कमरा अभी भी है, जो मेडिटेशन रूम है। यही जो गद्दी है, यही जो पलंग है, बाबा यूज़ करते थे। आज भी बाबा के कमरे में ऐसे ही है, लेकिन बाबा के कमरे को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। इसके पहले जहाँ पर आप दरवाज़ा देख रहे हैं वहाँ तक ही होता था, अभी उसके पीछे भी इतना स्थान है, वो भी मेडिटेशन रूम है। आप एक्सपीरियंस करते हैं जब भी जाते हैं, बहुत पीसफुल, बहुत पावरफुल प्लेस। एंड यू डोंट फील दैट बाबा नहीं है अभी साकार में, शरीर में। तो जब 1969 जनवरी 18 को बाबा अपना ये पार्थिव देह, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जब हलवा तैयार है तो उनको वो कढ़ाई छोड़ती हैं, ऐसे जब आत्मा एम्पावर्ड हो गई, आत्मा शक्तिशाली संपन्न बन गई, तो शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। तो बाबा 1969 में रोज़ सवेरे सत्संग चलता था, शाम को सत्संग चलता था। बाबा को बहुत खांसी भी आती थी। बैडमिंटन खेलते थे रोज़ बाबा, बच्चों को भी लेके जाके खेलते थे। और उस दिन जो है सवेरे क्लास नहीं कराए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, क्लास नहीं कराए थे सवेरे। मतलब शिव परमात्मा प्रवेश होकर रोज़ सत्संग चलता था, वो सत्संग नहीं चला। फिर बाबा ने एक दादी को, प्रकाशमणि दादी को बुला के बोला, बच्ची आज शाम को जल्दी सभी को भोजन खिला दो और सब किचन समेट लो, फिर बाबा आज शाम को क्लास कराएंगे। तो बच्चे सब खुश हो गए और बाबा के पास आए। और 2 दिन पहले से ही बाबा को एहसास हुआ कि 2 दिन में या अभी शरीर छोड़ने का समय आ गया। पहले से ही बाबा प्रिपेयर्ड थे, लेकिन बच्चों को थोड़े ही बता सकते। या 1 साल पहले 68 में ही उनको ऐसा फील होता था कि अभी ये शरीर से या ये साउंड से परे जाना है। तो उनकी पूरा वही पुरुषार्थ रहा 1-1.5 साल तक। पहले से कर रहे थे, 33 इयर्स हो गए परमात्मा प्रवेश होकर, लेकिन ये इंटेंस पीरियड था। बाबा के पास जो जाए वो सब लाइट महसूस करते थे, वो सब उड़ने लगते थे, ऐसे महसूस करते थे। तो 69 में उस दिन जो 18 जनवरी, प्रकाशमणि दादी जो बॉम्बे में रहते थे उस समय, सेंटर संभालते थे, दादी आए थे एक ग्रुप को लेके बाबा से मिलाने के लिए। बाबा ने बोला, बच्चे आप रुक जाएंगे क्या थोड़े दिन? तो दादी ने बहुत खुशी से बोला, हाँ क्यों नहीं बाबा। फिर बाबा उनको हाथ पकड़कर प्रकाशमणि दादी को पूरा घर दिखाया, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बच्चों को जो सेवा करते हैं या जो पालना होती है, कैसे पूरा चलता है, उनको पूरा समझाया। और बाबा ने ऐसे ही पूछा, बच्चे अगर बाबा नहीं देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा? उनको तो मालूम नहीं बाबा का मीनिंग क्या था, लेकिन दादी ने बहुत खुशी से, नशा से बोला, बाबा आपने इतना शक्ति भरा, इतना हमको एबल बनाया, हम भी संभाल सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली बाबा हिंट दे रहा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आया या किसी की संकल्प ही नहीं चला। ये 93 इयर्स का बुढ़ा हो गया, अभी कब जाएंगे मालूम नहीं, ये संकल्प भी आया नहीं, क्योंकि वो ऐसे बिहेवियर ही नहीं था 93 इयर्स का, इतना यंग, इतना एक्टिव। तो फिर उस दिन सभी दिखाया, 2 दिन दादी को पूरा दिखाया, पूरा बताया, फिर रात को क्लास भी कराया। तो लास्ट महाशब्द बाबा के थे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये 3 महाशब्द, 3 महामंत्र बाबा ने बच्चों को बोला। निराकारी, निराकारी मीन्स ये शरीर से अलग आत्मा है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। निर्विकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार है, इससे अलग होना, निर्विकारी। और निरहंकारी, अहंकार भी उसमें आ गया निर्विकारी में, लेकिन बाबा ने खास इसको निरहंकारी भी बोला। मतलब कोई भी साधना के पथ पर है, साधक को एक बाधक बनता है अहंकार। कितना भी हाईएस्ट मंजिल पर जाओ, अगर अहंकार आया तो फिर वहाँ से गिर गए। स्नेक्स एंड लैडर्स, द लास्ट स्नेक 99 में अगर वो पकड़ा तो फिर कहाँ एकदम नीचे 3 और 4 में। तो वो कौन सा सांप है? अहंकार।
राइट। तो बाबा ने ये 3 महामंत्र दिए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव, और बहुत सारी बातें सुनाए उस दिन रात को। और वो हिस्ट्री हॉल था और जहाँ पर क्लास चलता था, जाते जाते ऐसे दरवाजे पर खड़े हो गए बाबा ने, सभी को बोला, बच्चे बाबा छुट्टी लेते हैं, ये बोलने के बाद। और किसी ने गौर नहीं किया, कभी नहीं बोला जीवन में बाबा छुट्टी लेते हैं, आज छुट्टी क्यों बोल रहा है, कोई ने नहीं सोचा। फिर क्लास से आए, अपने कमरे में गए, बाबा के साथ कुछ भाई बहनें जो मुख्य थे वो सब भी बाबा के साथ गए। तब तक अस्थमा भी बहुत ज़्यादा था, खांसी भी बहुत हो रहे थे, और किसी ने बोला कि डॉक्टर को लेके आओ। उस समय जनवरी, बहुत ठंडी का मौसम, और एक ही डॉक्टर होता था पूरे माउंट में। तो उनको ले आने के लिए साइकिल पे गए, रात का टाइम, करंट भी ज़्यादा नहीं रहता था, तो भाई लैंटर्न लेके गए ले आने के लिए। फिर बाबा लेटा भी नहीं, बैठे ही थे, बहुत शांतमय होकर, बहुत शक्ति निकल रहा था उनसे, और ऐसा प्रकाशमय। और दादी के हाथ में, प्रकाशमणि दादी के हाथ में हाथ रखा, और जैसे कि पूरे शक्तियाँ दादी को विल कर रहे हैं, पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा उनको सौंप रहे हैं, ऐसे दादी भी फील किया। और बाबा एकदम शांत होकर, जैसे आत्मा पंछी जो है ये शरीर रूपी पिंजरे में थे अभी तक, इट वॉज इन द केज, राइट। द सोल, द एंजल, और यू कैन से एज बर्ड, फ्लोन अवे फ्रॉम दिस बॉडी, द केज, बहुत शांति से। फिर सबको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर आया, उन्होंने कंफर्म किया बाबा अभी नहीं रहे हैं। फिर ये 18 जनवरी अराउंड रात को इसी टाइम पर 8:30 9 o'clock के टाइम पर ये हुआ था। फिर फर्स्ट इस शॉक से बाहर निकले प्रकाशमणि दादी, अभी क्या करना है नेक्स्ट। फिर दादी ने सभी को फ़ोन किया, लगभग 120 सेंटर्स थे उस समय इंडिया में, हर जगह जगह पर, साउथ नॉर्थ हर जगह पर। तो दादी ने एक एक सेंटर को ट्रंक कॉल बुक करके फ़ोन किया। दादी ने बोला कि आप ड्रामा को समझते हैं, ड्रामा माना जो हुआ है वही रिपीट होगा, आप कुछ क्लासेस में सुना होगा। तो हाँ समझते हैं, सुनते हैं, याद है आपको ड्रामा? हाँ याद है। तो बाबा अभी नहीं रहे हैं, तो शॉक में चले गए बहुत सारे, बाबा नहीं रहे इसका मतलब क्या है। फिर दादी ने बहुत शांति से सभी को समझाया, किसी को रोने नहीं दिया, आंखों में आंसू नहीं आया किसी को भी। दादी भी इतना स्ट्रांग होकर सभी को मैसेज दिया। और एक टीम गए जो अभी जहाँ पर माउंट है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट के पास गए और परमिशन लिया कि बाबा जिस स्थान पर रहते थे उसी स्थान पर बाबा का अंतिम संस्कार किया जाए। तो जिस जगह पर बाबा बैडमिंटन खेलते थे और वहाँ ओपन प्लेस रहता था जहाँ पर बाबा खेल भी करते थे और उसमें बहुत सारे चीज़ों को सुखाने के लिए उसके लिए भी यूज़ करते थे, उसी स्थान को चुना कि ये स्थान में ही बाबा को अंतिम संस्कार किए करके। फिर 20 तारीख तक ऐसे सब लोग आ गए। 21 तारीख को 21 जनवरी 1969 को बाबा के इस शरीर को अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार किया। तो 2-3 दिन बाहर रखे, लेकिन शरीर से कोई भी ऐसे नहीं समझे कि ये बांझ आ रहा है या ऐसा मृत्यु को देह को रखा है, नहीं, ये एकदम जैसे फरिश्ता, मैंने बोला ना एंजल कैसे रहता है, तो उनके शरीर से वही वाइब्रेशंस, वही सुगंध फैल रहा था कि एक एंजल जैसा। तो ये वो चित्र है। बाबा को पूरे हर जगह पर घुमाया माउंट में, और सब लोग बोलने लगे, माउंट वाले भी जो नहीं आते थे, जो अपोज करते थे, आबू का फरिश्ता चला गया, सबके बोल लिए थे। तो ऐसे स्थान जहाँ पर बाबा को अग्नि संस्कार किया, ये है टावर ऑफ पीस। उसको बाद में कुछ 1-2 साल के बाद ये टावर बनाए, जिसको शांति स्तंभ कहते हैं। वाइट मार्बल स्टोन से ये स्थान बनाया है, और ये आज तक भी एक मेडिटेशन स्थान
और आप देख रहे हैं ये 4 स्थान जो भक्ति में भी हम 4 धाम कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा का 4 धाम है जहाँ पर बाबा ने अपना कर्म किया, अपने समय बिताया, शक्ति दिया। तो इसमें आप देख रहे हैं एक है टावर ऑफ पीस, ऊपर साइड में देख रहे हैं, और नीचे जो है बाबा का कमरा जहाँ पर ट्रांसलेट बाबा बैठा हुआ दिख रहा है, वो बाबा का कमरा, वो भी मेडिटेशन रूम है। उसके बाजू में है कुटिया, जो बाबा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम भी करते थे, लेटर्स भी खास बैठ के लिखते थे, वो है बाबा का कुटिया। और ऊपर है हिस्ट्री हॉल, जो हॉल इससे भी थोड़ा छोटा ही है, इतना चौड़ा भी नहीं है, इसमें आधा होगा, उस समय वही बड़ा हॉल है। 120-130 मेंबर्स बैठ सकते हैं आराम से शायद। तो ऐसा स्थान था, उसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं, जहाँ पर आप ऊपर चित्र देख रहे हैं, दोनों साइड पुराने यज्ञ के चित्र रखा गया है, जिसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं। ये 4 स्थान जो है बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत शीतल शांतमयी अनुभव कराता है ऐसा स्थान ये मधुबन के, मतलब पांडव भवन जो ओरिजिनल कैंपस जहाँ पर बाबा रहते थे। तो ये है हिस्ट्री। 1969 तक बाबा के संस्मरण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1994 को एक स्टैम्प भी रिलीज़ किया ब्रह्मा बाबा का संस्मरण में, और फर्स्ट डे कवर करके एक एनवलप भी पोस्टल डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट से ये भी रिलीज़ किया था उस दिन। ऐसे बाबा की पर्सनालिटी 86 इयर्स की संस्था की जो हिस्ट्री है, आई डोंट थिंक आई कैन कवर इन 86 मिनट्स, सॉरी 88 मिनट्स। फिर भी मेन जो है बातें वो सुनाने की कोशिश किया। बहुत हिस्ट्री है वैसे। आज अपने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है मार्च में 100 इयर्स होने वाले है, दादी प्रकाशमणि। तो बाबा के साथ जो उस समय सिंध से आए हैं, तो वो एक ही दादी बचे हैं, बाकी तो सब अपना देह त्याग कर दिया है। तो बाकी यूनाइटेड नेशंस में भी अपना कंसल्टेटिव स्टेटस में सेवाएं दे रहे हैं। पूरे विश्व में हर जगह पर यही सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो आप जाने के पहले आज ये 4 धाम जो आपने देखा मधुबन का, माउंट आबू का, ये रेप्लिका इधर भी बनाया है। आप इसी बिल्डिंग में नीचे जाएंगे, आपके राइट हैंड साइड, मतलब मेरे राइट हैंड साइड, इधर बाबा का कमरा भी है। और आप फूलों का डेकोरेशन 18 जनवरी को किया था, वो आपके लिए खास रखा है, आप भी उसका फ्लेवर लेवे करके। और उसके बाजू में है हिस्ट्री हॉल, जहाँ पर जो मैंने चित्र दिखाया थोड़ा बहुत उसको वहाँ पर दिखाया है। और शांति स्तंभ है एक हॉल में, हॉल नंबर 3 में हिस्ट्री हॉल भी रखा, मीन्स शांति स्तंभ भी रखा है। और बाहर जो है कुटिया, जो यहाँ पर कुटिया देख रहे हैं, सेम रेप्लिका मेडिटेशन रूम वहाँ पर भी है। तो आप जाने के पहले 1-1 सेकंड भी रहो चलेगा, लेकिन ये चारों स्थान का जो आनंद है, जो शक्ति है, आप में भर के जाना ज़रूर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया आज, लेकिन आप ऐसे भी बैठे थे कि आप बहुत इंटरेस्टिंगली यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट स्टॉप। सो ये था ब्रह्मा बाबा के थोड़ा सा जीवन की झलकियाँ, लेकिन हम बाबा समान बनने का अभी कोशिश करें, यही हमारा लक्ष्य है।